ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں حسن فاؤنڈیشن کے یہاں پہ وائس چیئرمین موجود ہیں شاہدہ خان صاحبہ, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی عالیہ زیدی صاحبہ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت حسن فاؤنڈیشن کے حوالے سے, 2007 سے کام کر رہے ہیں, اور ان کے جو کام کی جو طاقت ہے وہ بیسکلی ان کی اپنی ول بھی ہے, اور ان کے ساتھ لوگ جو شامل ہوئے ہیں عالیہ زیدی صاحبہ جیسے مختلف لوگ جنہوں نے ایک طاقت بخشی ہوئی ہے, اور سب سے بڑا جو عزم ہے مختار خان صاحب کا اور شاہدہ خان صاحبہ کا, اس چیز کو ایک طاقت ایک افادیت دے رہا ہے کہ جناب پاکستان کے پیاسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ایک بار شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ حسن فاؤنڈیشن میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیے تاکہ یہ کام اور جلد سے جلد بہتر طریقے سے ہو سکے. جناب ایک سوال, امریکہ کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک پرسیپشن لے کے بیٹھے ہیں جی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بیسکلی پاکستان کے لیے کام کرنا نہیں چاہتے زیادہ, اور ہر کوئی اپنا حصہ نہیں ڈالتا. حسن کی جدائی کے بعد آپ نے جو یہ ٹھیکہ اٹھایا ہے, ذمہ اٹھایا ہے, اس کو آپ خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہیں. یہ جو ای میل ایڈریس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اور جو اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, اس پر آپ جو ہے اپنے فنڈز اور اپنی ڈونیشن جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں, اور پروفائل بھی چیک کر سکتے ہیں. اس پر فیس بک کا بھی ایڈریس آ رہا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس پر آپ جا کے ان کے معیار کے کام کے معیار کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس پہ پروون موجود ہے, جو پکچرز موجود ہیں اس پر ان کا تمام کیا ہوا کام موجود ہے. آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ جناب کتنی ہی فاؤنڈیشنز ایسی ہیں جو آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ پروف بھی دیتی ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ نے دیا اس کے کام کی کیا بیسکلی اس وقت شکل موجود ہے. یہ آپ کو ملے گا اس فیس بک پیج پہ. اس کے علاوہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں اس پر آپ کے ڈونیشن کا انتظار حسن فاؤنڈیشن کو رہے گا. یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کے لیے آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں. میم کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سوچتے ہیں پاکستانی ایسا بہت سارے, یا آپ کو افسوس ہے اس بارے میں کہ سب اس طرح نہیں سوچ پاتے؟ نہیں, ہماری سپورٹ پاکستانیوں کی طرف سے ہے بہت. یونائٹڈ اسٹیٹس میں, کینیڈا میں کچھ لوگ ہیں جو دبئی, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, تو وہ سب سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک سب کو بہت انسیت ہے اپنے وطن عزیز سے, ٹھیک ہے, اور مدد کرنا چاہتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے ہم اتنا ایکسپینڈ کر سکے. ٹھیک ہے. عالیہ صاحبہ جیسے پی ایچ ڈی ہیں آپ کے پاس, اور بھی آپ نے بتایا ٹوٹل کتنے پی ایچ ڈیز ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے بورڈ پہ 4 پی ایچ ڈی ہیں, 2 پاکستان میں ہیں اور 2 یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اتنے تو ہماری یونیورسٹیز میں افسوس کے ساتھ نہیں ہوتے. عالیہ صاحب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد فاؤنڈیشن کے لیے وقت نکالنا, کام کرنا کتنا مشکل ہے ویسے, یہ بتائیے, کیونکہ ایک عزم تو ہے آپ کو لیکن پرابلمس تو ہوتی ہوں گی. ہاں مشکل تو ہے, اور وقت نکالنا کبھی کبھی خاصا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جس چیز کو آدمی انجوائے کرتا ہے اور جس چیز میں آپ کو, مجھے تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے یہ دوسروں کا جو کام کرنا ہے, اور یہ سوچنا کہ آپ کے کام کی وجہ سے کسی ایک آدمی کی بھی پیاس بجھ رہی ہے, میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑا ریوارڈ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ موٹیویشن ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے. آپ جب, کیونکہ تھوڑا سا میں ان سے معلوم کر لوں, آپ جب پڑھ رہے تھے, آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے, اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے, ظاہر ہے آپ کی اپنی لائف بھی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ پوری فیملی کے اندر کسی کے پاس اور ایسا ہے آپ کی فیملی کے اندر, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں اس سوچ کے جو اس کام کو سپورٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتے؟ میرے والدین, میرے جو شوہر ہیں وہ تو بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور جتنی بھی میں اپنی فیملی سے بات کرتی ہوں, ایکسٹینڈڈ فیملی سے بھی, سب بہت خوش ہوتے ہیں سن کے, اور سب اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کام میں شامل ہوں. یہ سوال میں نے ان سے اس لیے کیا کہ اس سے پتہ چلے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کس کو پیسہ دے رہے ہیں, کیا ان کا پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے, کیا وہ صحیح لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کو کیسے آپ چیک اینڈ بیلنس کرتی ہیں, اس کا جواب دیجیے. ہاں, یہی کوشچن مجھ سے ای میل میں ایک خاتون نے کیا تھا کراچی سے ہی, تو اس کے لیے میرا جواب یہ تھا کہ ہم جب پروجیکٹس کرتے ہیں, ہمارے آج کل بیچز میں لگ رہے ہیں, بیچ آف 50 یا 100, ٹھیک ہے, وہ اس کا تب ہم آگے جاتے ہیں جب وہ سارے کے سارے چیک نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے فیملی ممبر ایک آتے ہیں, ساتھ ایک اور فرینڈ کو بھی لے آتے ہیں. فیملی ممبر آپ کے ذاتی؟ ٹھیک ہے. مختار کے نیفیو ہیں, ہمارے نیفیو ہیں, اور ہی از اے سکسیسفل بزنس مین, لیکن اس کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, تو خدا اس کو اجر دے اس کا. بے شک جی, بالکل دے. تو جب تک ان کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ ہر ایک پمپ ٹھیک جگہ پہ لگا ہے اور لگا ہے اور کام کر رہا ہے, لگا ہے, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو میں نے ان کو کہا خیر ہے, کیونکہ میرے پاس تو لسٹ آتی ہے پوری
सीरियल नंबर होता है, गांव का नाम होता है, बंदे का सब रेफरेंस होती है. तो आई एम सेटिस्फाइड कि 100 के 100 लग चुके हैं. कहते हैं नहीं, जब तक लोगों को पता होता है कि हम चेक कर रहे हैं तो काम ठीक चलेगा. ठीक है. अगर हमने बीच में से छोड़ना शुरू कर दिया तो वैसा नहीं चलेगा. ठीक है. तो हमें पूरी तसल्ली है कि सब काम कर रहे हैं. और हमने उनको वो छोटा सा आला होता है वो भी छोड़ जाते हैं कि बड़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन वाले पंप्स हैं. ये कैसे आप करते, मतलब जब आपने शुरू किया, आप आलिया साहिबा आपसे मिली हैं बाद में, लेकिन जब आप लोगों ने शुरू किया तब अपने ही आप हिसाब किताब से सारी चीजें कर रहे थे, अपने ही पैसों से सारी चीजों को आपने किया? 4 साल तक हमने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया था. ठीक है. तब लिया जब फ्रेंड्स ने और करीबी लोगों को पता चला, अच्छा काम है, तो हमें भी साथ मिल काम में शामिल करो. ठीक है. फिर भी हमें बड़ा झिझक सी थी कि हम किसी को कैसे कहेंगे कि आप डोनेट करें. बहुत मुश्किल काम है किसी से पैसा मांगना. ये वो वाहिद काम है नाजरीन जिसमें आदमी की क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पे आ जाती है, और अगर आपकी टीम डिलीवर ना करे तो उससे जो मेन होते हैं, जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं और शको शुबात की नीयत जो है. लेकिन जो फाउंडेशन है हसन फाउंडेशन, उनकी वेबसाइट पे आप जाके सारी चीजों को देख सकते हैं. आलिया साहब, जो सर्कल है आपका, जाहिर है वो सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, क्या सोचते हैं, वो सपोर्ट करते हैं? आपके दोस्त अहबाब, आप जाहिर है इस चीज को मार्केट करते होंगे, बात करते होंगे, तो क्या सपोर्ट मिलता है आपको? बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बल्कि हमारा जो इवेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा अटेंडेंस होती है. 600 से ज्यादा लोग आते हैं और हर साल अटेंडेंस बढ़ती जाती है. ठीक है. और यही बात है, हम ना तो कोई एडवर्टाइज करते हैं, ना हम कोई प्रमोशन करते हैं. तो एक आदमी को पता चलता है, वो अपनी फैमिली को बताता है, अपने दोस्त को बताता है, इसी तरह ये सिलसिला आगे. मेरे ख्याल में तो ये करना चाहिए, इसको प्रमोशन करनी चाहिए और इसको मार्केट करना चाहिए, ताकि जितना आप लोग जो काम कर रहे हैं वो छोटा नहीं है. नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, आप जाके हसन फाउंडेशन की वेबसाइट जो आपके सामने चल रही है उसको सर्च कीजिए, आप देखें कि कितना काम हो चुका है. तकरीबन 1319 प्रोजेक्ट्स कम नहीं होते, और आपने कई साल लगाए इसके लिए, मतलब डेकेड तो होने वाला है आपका पूरा एक. अब गुस्सा आता है? नहीं आता है. गुस्सा आता है? किस बात पे? नहीं, आप गुस्सा करती हैं अचानक से? जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो बहुत चढ़ता है? चढ़ता तो है. चढ़ता है ना. तो किस बात पे गुस्सा ज्यादा आता है? जब काम ठीक तरीके से ना करें आगे वाले आपके लोग, इस बात पे गुस्सा ज्यादा आता है, या इस बात पे गुस्सा आता है कि अभी तक मैं वो नहीं कर पाई जो मुझे करना है? नहीं, काम करना है तो ठीक करना है. ठीक है. अच्छे खासे स्पीड से जा रहा है. हम चाहते तो हैं कि और भी तेज जाए, लेकिन हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि और लोगों की लिमिटेशंस भी होती हैं. तो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. तो उस चीज पे गुस्सा नहीं आता. जी. मैंने इन दोनों का देखा है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ठीक है. अगर क्वालिटी पे कोई अफेक्ट है तो ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. मिशिगन में आप लोग हैं, वहाँ यूएस में? जी. तो इतना हसन के बाद से लेके आज तक आप कितने दिन पाकिस्तान में और हैं मजीद? हम यहाँ से तो 24 को वापस जा रहे हैं. ठीक है. और 31 को पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं. ठीक है जी. नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आप के स्क्रीन पर नंबर है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं और उसमें जो है डोनेट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है. स्टूडेंट की स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी आप लोगों ने जिक्र किया हुआ है, जरूरतमंदों के हवाले से भी जिक्र किया हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है. मतलब एक हसन फाउंडेशन के साथ आप लेकर इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपर दीर, लोअर अपर दीर, मैदान, कहाँ कहाँ आप लोगों ने काम किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है. मेरा एक सवाल ये बनता है इस वक्त जो जरूरी है, क्या कहेंगे उन लोगों से जो इस वक्त अपने जाहिर है करना चाहते हैं मदद, आपसे कैसे राब्ता करें? एक तो ये तरीकेकार है जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, दूसरा किस तरह से आपसे राब्ता किया जा सकता है? अकाउंट्स पे डायरेक्ट अगर वो सेंड करें, कुछ लोग होते हैं जो तसल्ली चाहते हैं, जो कहते हैं जी हमें जरा सा तशफ़ी हो जाएगी, हम आपसे राब्ता कर लें, बात कर लें, तो वो कौन सा तरीकेकार है? यूजुअली वेबसाइट पे जो लोग जाते हैं ईमेल कर देते हैं. ठीक है. अगर वो फोन करना चाहें तो नंबर वहाँ पे भी है यूएस का. ठीक है. कर भी देते हैं. ठीक है. तो उनकी तसल्ली हम कर देते हैं, और अल्टीमेटली वो अकाउंट नंबर मांगते हैं, वो दे देते हैं. आलिया साहब, पाकिस्तान में आप देख रही हैं ये सारा सिलसिला, इनके जाने के बाद पीछे कौन देखता है? नहीं, मैं तो वहाँ पे होती हूँ. आप भी वहीं होते हैं? यहाँ कौन होता है जो बेसिकली यहाँ पे इनकी फैमिली है जो ओवरसी करती है, उसके अलावा और भी वॉलंटियर्स हैं. ठीक है. जो कि पूरा काम ओवरसी करते हैं और रिपोर्ट करते हैं. रोजाना बातचीत होती है. फंड्स का क्या क्राइटेरिया क्या है? कितना आदमी फंड कर सकता है, कहाँ से शुरू कर सकता है, और कितने तक की? कोई अमाउंट कोई तो होगी नहीं, कुछ भी. एक आदमी बोले मैं 500 रुपए देना चाहता हूँ, वो कर सकता है? बिल्कुल.
बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं 500 मैं पानी में डाल, वो पानी में ही जाएगा। ठीक है। और वो कहते हैं कि ये 500 है या 5000 है मैं यतीमों के लिए, वो उसी फंड में जाएगा। ठीक है। तो बाज लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं हमें पता है कि आपका फिलहाल कुआं 50,000 रुपए में बन रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 20,000 या 25,000 देना चाहती हूँ, ठीक है, और मेरे ये 2 नाम लिखते हैं पंप पे। ठीक है। हम कहेंगे जरूर, बहुत सारे लोग क्योंकि ऐसे हाँ हम अपने पैसे डालते हैं जी, तो हम हर एक पे तो अपना नाम नहीं लिखते ना, ठीक है, तो उसमें मिल जाते हैं तो उनका नाम लग जाता है। कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मस्जिदें बनवाना चाहते हैं, जो जमीनें देना चाहते हैं, जो मतलब उसको कहते हैं कि जी वक्फ कर दीजिए हमारी तरफ से, वो भी उन लोगों के लिए भी मेरे ख्याल में हसन फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो इनसे राब्ता कर सकते हैं। मैंने जो समझा है, जितना तज्जिया लिया है, जो मुलाकात हुई है मेरी जितनी देर की, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि एक औलाद का गम अगर इंसान को इतनी बड़ी ताकत देता है और एक हसन की गैर मौजूदगी कई हसनों की प्यास बुझाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक माँ होने के नाते इन्होंने अपना किरदार जो अदा किया है वो तो खैर खराज तहसीन के काबिल है। आलिया साहिबा जो अपना वक्त दे रही हैं वो भी ज़ाहिर खराज तहसीन के काबिल है, मुख्तार खान साहब जो अपना वक्त दे रहे हैं वो भी, लेकिन इनकी ताकत जो है वो आपके साथ ही है। अगर आपका इसमें हिस्सा डलेगा तो जो काम अभी हो रहे हैं, जाहिर है उसमें आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो शामिल हाल हैं, लेकिन बहुत सारे अगर आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे तो वही एक गाड़ी जो है मजीद आगे चलती है और उससे बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ हो सकती हैं। ये इंडस टीवी के जो है वेबसाइट पर आप ये प्रोग्राम भी देख सकते हैं, अपलोड कर देंगे हम, फेसबुक पर भी ये आपको मिलेगा। एक जाते जाते सवाल, वक्त खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको अपना मैसेज दे दीजिए और बताइए कि वो आपसे राब्ता करें और क्या उनको करना चाहिए बेसिकली जिंदगी में। मैं सबको यही कहूँगी कि ये सब लोगों की मदद के बगैर ये कुछ भी ना होता। हम करते लेकिन थोड़ा सा, जितना हम अफोर्ड कर सकते, लेकिन जब हम मिल के काम करते हैं तो उसका तो कोई और ही हिसाब है। ठीक है। अकेले में हम इतना ना कर पाते जितना आप सबकी मदद से हम कर सक रहे हैं। ठीक। तो वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप ईमेल कर सकते हैं हमें, उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी मौजूद है, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम ज़रूर आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बस इत्मीनान रखें कि ये हमारा आपसे वादा है, जो भी आप डोनेट करेंगे वो ज़ाया नहीं होगा। ये मेरा खुदा गवाह है कि हम पैसा वेस्ट नहीं करते। अच्छी बात है। आलिया साहबा, आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी अपना एक मैसेज दे दीजिए। मेरा तो मैसेज ये है कि कोई भी जो रकम है वो कम नहीं है। अगर आप 10 रुपए डोनेट कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना करें, और जितना मज़ा दूसरों के मदद में आता है और जितना लुत्फ़ आपको आता है कि आप किसी के काम आए हैं, उस चीज़ में जितना मज़ा है उतना किसी चीज़ में नहीं है। तो दूसरों के काम अगर आए आदमी, तो मेरे ख्याल से वही असली ज़िंदगी है। ठीक है, ज़िंदगी वही असली है। किसी को शौक नहीं है कि वो अमरीकी आरामी ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान के अंदर लोगों के लिए मदद के लिए उतरे। हसन की जुदाई ने एक माँ को एक हसन फाउंडेशन बनाने पे, एक बाप को हसन फाउंडेशन बनाने के लिए राजी किया। आज ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जो है वो जारी है। इसमें शाहिदा खान साहिबा, मुख्तार खान साहब और आलिया जैदी साहिबा और दीगर लोगों की जो है वो मेहनत शामिल है, जो सिलसिला बनता चला जा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये 2007 से लेके 2015 और आज भी जो इनका अज़म है जो नजर आ रहा है इन दोनों शख्सियात का और इनके हस्बैंड का जो इस वक्त यहाँ नहीं है, उन सब का अगर ये अज़म है कि वो पाकिस्तान के प्यासे लोगों की प्यास बुझाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं जो इस वक्त बैठ के एयर कंडीशन कमरे में और अपनी लैंड क्रूजर्स और पिजारों में बैठकर मदद करने के लिए खाली आगे नहीं आ सकते। उनको चाहिए कि पाकिस्तान में मौजूद आला तालीम के लिए जो ये काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो इखलाकी हरकत है वो यही होती है कि इखलाकियात में रहकर आप किसी ऐसी जगह सही पैसा अपना इन्वेस्ट करिए जहां आपको ये एतबार हो कि ये पैसा सही लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। फाउंडेशंस हमेशा बनती हैं और फाउंडेशंस का जो मेयार होता है उसको चेक एंड बैलेंस करना फंड्स देने वाले का काम होता है कि वो उसको चेक एंड बैलेंस रखे, और उसको चलाने वाले का काम होता है कि वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे। तो इस वक्त जो मेरे सामने है वो बिल्कुल ठीक है, आप भी देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने किरदार को ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है इन्वॉल्व करें ताकि
یہ جو امریکہ سے چھوڑ کے پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے کرنے آئے ہیں، پاکستان میں رہ کر آپ ان لوگوں کے ہاتھ کو تھامیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے پاکستانیوں کی ہی مدد کر سکیں اور ان کی پیاس بجھا سکیں، ان کو تعلیم دلا سکیں، ان کے مسائل کو حل کر سکیں۔ شاہدہ خان صاحبہ بہت بہت شکریہ، اچھا لگا آپ سے مل کے۔ عالیہ زیدی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین ملاقات ہوگی ایک بار پھر آپ سے کل انشاءاللہ۔ زندگی بخیر، مولا سلامت رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔